Hello students, in this video I will show you how to prepare the financial statement of a credit cooperative society. I'll read the problem first. The trial balance of self-help cooperative credit society limited as on 31st March 2020 is as follows. So there are particulars in the trial balance. I'm going to say the ledgers with their closing balances in the trial balance, and the trial balance is matching with the sum of 33,37,300. There are few adjustments also. Adjustment number one is interest payable on members' deposits amounted to rupees 5,000. So whatever money is accepted by the cooperative society from its members as a deposits, on such a deposits payable interest is rupees 5,000. Second is interest receivable on members' loan rupees 8,000. So whatever loans are given by this credit cooperative society to its members on such a sum, interest receivable is 8,000, and whatever investment it has made on such a investments, interest receivable is 2,000. Next is outstanding expenses, salaries and audit fees. Next is dividend at 5% declared on share capital of rupees 7 lakh. So 5% of 7 lakh is 35,000. It means the amount of dividend declared is 35,000. As on 31st March 2019 out of profits of 1890, and we have to prepare here financial statements as on 31st March 2020. Now it is interesting with respect to adjustment number 4 to know how much is exactly paid as a dividend. मतलब डिविडेंड करके कितना पेमेंट हुआ है इन द फाइनेंशियल ईयर 1920, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नो. और हमें यहाँ पे अपार्ट फ्रॉम ट्रांसफरिंग 25% टू रिजर्व फंड हमें डिविडेंड भी पे करना है आउट ऑफ द प्रीवियस ईयर प्रॉफिट, दैट इज 1890 का जो भी प्रॉफिट है उसमें से हमें डिविडेंड भी पे करना है अलॉन्ग विद ट्रांसफर ऑफ 25% ऑफ द नेट प्रॉफिट ऑफ 1890. ओके, मैंने आपको बहुत बार बोला है और आज भी एक बार बोल रहा हूँ, वन मोर टाइम, इसी लेक्चर इसी वीडियो में बोल रहा हूँ आपको. जब भी आप फिनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो आपको फॉर्म एन को ही फॉलो करना है, आप सीक्वेंस भी चेंज नहीं कर सकते. और जब भी आप ये फॉर्म को ड्रॉ करोगे आपके नोटबुक में या फिर आंसर शीट में, तब आपको सबसे पहले रीड करना है इन डिटेल सारे के सारे एडजस्टमेंट्स और ट्रायल बैलेंस, ईच एंड एवरी पर्टिकुलर, ईच एंड एवरी लेजर गिवन इन द ट्रायल बैलेंस आपको रीड करना है. तभी आपको जाके एक आप अनुमान लगा सकते हो कि प्रॉफिट लॉस अकाउंट के अंदर जितने भी आइटम्स हैं वो उन आइटम के नीचे कितनी लाइन छोड़नी है. बैलेंस शीट के अंदर जो भी असेट्स है, जो भी लाइबिलिटीज उसके नीचे कितनी लाइन छोड़नी है, यू विल कम टू नो ओनली आफ्टर रीडिंग in detail the trial balance data and the adjustments. If you are preparing the format in your notebook and in your answer sheet without reading the trial balance and adjustment, then do one thing: leave ample number of lines, leave maximum lines below each item coming in profit loss account and balance sheet. तो फिर ऐसे कर लो, या तो फिर आपका जो भी एक्सपीरियंस है, जितने भी आपने प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं, उस हिसाब से आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से आइटम के नीचे कितने आइटम्स आते हैं. उस हिसाब से नंबर ऑफ लाइंस छोड़ दो, एक अंदाज करके एक अनुमान लगा के छोड़ दो आप. ठीक है. ओके, नाउ आई विल हियर प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ दिस क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, दैट इज सेल्फ हेल्प कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड. This is the format. Now the first is cash in hand, cash with SDCC Bank and balance with Dena Bank. All these three are the assets of this credit cooperative society, and Form N provide a specific head for recording these type of assets. That is asset number 1, cash and bank balances. तो मैं यहाँ पे इन तीनों का बैलेंस यहाँ पे दिखाने वाला हूँ मैं, और फटाक से इनका एडिशन बंद करके भी लूँगा मैं, क्योंकि एडजस्टमेंट मैंने रीड कर ली है, उसके अंदर तो इसके रिलेटेड एक भी एडजस्टमेंट नहीं है और यूजुअली होता भी नहीं. सो 22,600. ओके, नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट. इट इज ऑल्सो an asset
of cooperative society and form and provides a specific head for it, that is asset number 2 इन्वेस्टमेंट्स। यहाँ पे देख लो आप asset number 2 इन्वेस्टमेंट्स, यहाँ पे मैं इसे दिखाने वाला हूँ, that is 1,55,000 rupees। Next is loan due from members। Now it is the amount, so that much amount is given by the credit cooperative society to its member as a loan, so it is also asset of the credit cooperative society, and for recording this type of asset, form and provides a specific head, that is asset number 4 loans and advances। तो इसे भी यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। So below loans and advances, loans due from members 30 lakh rupees। The next है that is office furniture। Now it is also an asset of the cooperative society, a fixed asset है, and form N में asset number 7 जो है fixed asset, यहाँ पे मैं इसे दिखाने वाला हूँ। Next to office furniture, fixed asset। After that, next is share capital। Now it is the liability of the cooperative society। इसे मुझे दिखाना है बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पे, तो लाइबिलिटी नंबर 1 जो है शेयर कैपिटल, यहीं पे मैं इसे दिखाने वाला हूँ 7,50,000। नेक्स्ट है रिजर्व फंड। अब ये रिजर्व फंड का बैलेंस है, तो मैं इसे लाइबिलिटी साइड पे दिखाऊंगा बिलो रिजर्व फंड्स एंड अदर फंड्स, लेकिन इनर कॉलम में दिखाऊंगा क्योंकि प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट जो है उसका 25% यहाँ पे ट्रांसफर करना है दिस ईयर, तो फिर वो ट्रांसफर होगा, फिर वो बैलेंस और ये ओपनिंग बैलेंस का एडिशन होके उसका फाइनल अमाउंट मैं आउटर कॉलम में दिखाने वाला हूँ। अब नेक्स्ट है डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व। ये भी प्रॉफिट का ही पार्ट है, प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन करके रिजर्व बना है डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व। अब इसे भी वही पे दिखाना है बिलो रिजर्व फंड्स एंड अदर फंड्स लायबिलिटी साइड पे, सो इसे डायरेक्टली आउटर कॉलम में दिखाने वाला हूँ। ओके, क्योंकि कोई एडजस्टमेंट नहीं है रिलेटेड टू डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व। नेक्स्ट इज स्टाफ प्रूडेंट फंड, एंड लेट मी टेल यू जो स्टाफ प्रूडेंट फंड है, फॉर रिकॉर्डिंग स्टाफ प्रूडेंट फंड इन फॉर्म एंड एट लायबिलिटी साइड देयर इज स्पेसिफिक हेड फॉर इट, स्पेसिफिक हेड है लायबिलिटी नंबर 3 स्टाफ प्रूडेंट फंड। तो यहाँ पे देख लो स्टाफ प्रूडेंट फंड, ये रिजर्व फंड और अदर फंड के अंदर नहीं आता, इसका सेपरेट ही फंड है, मतलब सेपरेट हेड है इसका स्टाफ प्रूडेंट फंड। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है डिपॉजिट्स फ्रॉम मेंबर्स, मतलब मेंबर्स से डिपॉजिट्स एक्सेप्ट किए हैं 22,48,000, ये लायबिलिटी है इसका मतलब ऑफ दिस बैंक, और डिपॉजिट का एक स्पेशल हेड भी है लायबिलिटी साइड पे, नंबर 6 L6 डिपॉजिट्स, तो यहाँ पे दिखाना है नेक्स्ट टू डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर्स 22,48,000। After that, next is dividend। हाँ, now this is important। In the financial year 1920, amount of dividend paid is 31,000। खाली ध्यान में रखो आप कि 31,000 का डिविडेंड पेड किया है, लेकिन डिक्लेयर कितना किया था 5% ऑफ 7 लाख, मतलब 35,000 का डिक्लेयर किया था, लेकिन खाली पेड कितना हुआ है 31,000 का हुआ है। इसका मतलब अनपेड डिविडेंड कितना है 4,000 का है। इसका इफेक्ट मैं बाद में रिकॉर्ड करने वाला हूँ। नेक्स्ट इज वी हैव द प्रॉफिट लॉस अकाउंट, प्रॉफिट ऑन 1 अप्रैल 2018 एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर 18-19। अब आप समझ लो कि हमें जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना था वो बनाना था एज ऑन 31 मार्च 2020। इसका मतलब 1920 अकाउंटिंग ईयर का या फिर फाइनेंशियल ईयर का हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है, और यहाँ पे जो 18-19 है जो कि प्रीवियस ईयर है ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर, 1920 का प्रीवियस ईयर है, अकाउंटिंग ईयर है 18-19, उसका प्रॉफिट कितना था 6,000, और इस 18-19 के पहले मुझे एट द बिगिनिंग ऑफ 2018-19 फाइनेंशियल ईयर कितना प्रॉफिट है 23,000 है। मतलब 18-19 से पहले जितने साल भी इस कंपनी ने बिजनेस, मतलब इस कंपनी ने कोऑपरेटिव सोसाइटी ने अपना बिजनेस किया है, तो उन प्रीवियस ईयर्स में इस कोऑपरेटिव सोसाइटी का प्रॉफिट था 23,000, लेकिन पिछले ही साल मतलब 18-19 में इसने कितने प्रॉफिट कमाया है 60,000 का प्रॉफिट कमाया। तो इसे सबसे पहले कहाँ पे दिखाना है हमें, लायबिलिटी साइड पे 11 नंबर का जो आइटम है ना प्रॉफिट लॉस अकाउंट, यहाँ पे दिखाना है इनर कॉलम। सो 20,000 प्लस 6,000 यानी इन टोटल अब कितना प्रॉफिट है 83,000 का प्रॉफिट है, 83,000 का प्रॉफिट है। अब आप बोलो कि मैंने एडिशन क्यों किया, आप फिर एक बार समझ लो, मैं फिर एक बार आपको बोलता हूँ कि हमें जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है 1920 का बनाना है। इसका मतलब 1920 का प्रीवियस ईयर कौन सा है 18-19 में, और 18-19 में कितना प्रॉफिट कमाया था 6,000 का प्रॉफिट कमाया था इसी कोऑपरेटिव सोसाइटी ने, और 18-19 से पहले इन टोटल जितने भी साल इसने बिजनेस किया है और या फिर फंक्शन किया है तो उसमें कितना प्रॉफिट कमाया है 23,000 कमाया है।
मतलब 18-19 से पहले 23,000, 18-19 में और 60,000 कमाए, यानी टोटल कितने कमाए 83,000 अभी तक कमाया है। मतलब अभी 19-20 का इसके अंदर हमने ऐड नहीं किया अभी तक, देखिए कितना अप टू 31 मार्च 2019 इन टोटल 83,000 रुपीज कमाया है ऑफ दिस क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स एंड लोन्स। जो भी इन्वेस्टमेंट्स इस कोऑपरेटिव सोसाइटी ने की है, जो भी लोन्स दिए हैं, उसके ऊपर इतना इंटरेस्ट इसे मिला है 1,75,000 का। मैं यहाँ पे इसे दिखाने वाला हूँ क्योंकि इसके रिलेटेड दो एडजस्टमेंट है मेरे हिसाब से। तो यहाँ पे देख लो, इंटरेस्ट रिसीवेबल ऑन मेंबर्स लोन। अच्छा, मेंबर को लोन दिया है लेकिन और उसके ऊपर 8,000 का इंटरेस्ट रिसीवेबल है, और जो भी इन्वेस्टमेंट किया है उसके ऊपर भी 2,000 का इंटरेस्ट रिसीवेबल है, मतलब इंटरेस्ट मिलने वाला है, मिलने वाला है। तो ये भी इनकम ही है आपको अपनी सोसाइटी को, इसे इनकम एज ए इनकम करके दिखाना पड़ेगा क्योंकि ये इसी साल का है, इसी साल का है ये। और हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट में क्या करते हैं, इसी साल के एक्सपेंसेस कंसिडर करते हैं और इसी साल के इनकम कंसिडर करते हैं, और दोनों को कंपेयर करके हम फाइनली कितना नेट प्रॉफिट या नेट लॉस है उसे कैलकुलेट करते हैं। तो दो इट इज़ नॉट रिसीव्ड इन कैश, स्टिल ऑन ड्यू बेसिस इसे हमें इनकम एज ए इनकम करके ट्रीट करना है। तो यहाँ पे देख लो आप इनकम साइड पे इन इंटरेस्ट रिसीव आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन मेंबर्स लोन कितना है 10,000 है, और 10,000 है, और उसके बाद इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर कितना है 2,000 का। तो इसका मतलब इन टोटल कितने रुपए का इंटरेस्ट कमाया है इस साल इसने, इस कोऑपरेटिव सोसाइटी ने 1,85,000 का। अब ये जो आई थिंक 8,000 है ना, मुझे फिर एक बार देखता हूँ, आई थिंक 8,000, हाँ 8,000 सॉरी 8,000, लेकिन इसका मतलब इन टोटल कितना कमाया है इस कोऑपरेटिव सोसाइटी ने इस साल 1,85,000 का इंटरेस्ट कमाया है, लेकिन 10,000 का इंटरेस्ट मिलने वाला है। मिलने वाला है मतलब इसे हमें एसेट करके ट्रीट करना पड़ेगा एट एसेट साइड बिलो अदर आइटम्स, बिलो एसेट नंबर 9 अदर आइटम्स यहाँ पे। सो 8,000 रुपीज़ और नीचे इसके 2,000 रुपीज़ नेक्स्ट टू इंटरेस्ट रिसीवेबल ऑन इन्वेस्टमेंट्स। अब उसके बाद नेक्स्ट है नेक्स्ट है रिन्यूएबल फीस एंड सेंट्रल इनकम। दोनों का भी क्रेडिट बैलेंस है और दोनों इसी कोऑपरेटिव सोसाइटी के इनकम है। और आप अगर आपने केयरफुली अगर आपने रीड किया इनकम साइड के सारे पर्टिकुलर्स और हेड्स, तो आपको समझ में आएगा कि इस नाम के मतलब रिन्यूअल फीस और सेंट्री इनकम नाम के कोई भी स्पेसिफिक हेड नहीं मिलता हमें। तो हमें इसे कहाँ पे दिखाना है, नंबर 4 के नीचे दिखाना है। मिसलेनियस इनकम कहाँ पे दिखाना है, नेक्स्ट टू और बिलो अदर आइटम्स यहाँ पे दिखाना है। देखो अदर आइटम्स पीछे में रिन्यूअल फीस और सेंट्री इनकम यहाँ पे दिखाया है 4,000 and 2,300। अब इसके बाद नेक्स्ट है सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ स्टाफ। तो ये एक्सपेंडिचर है, तो एक्सपेंडिचर साइड पे यहाँ पे देखो आप, इसका एक स्पेसिफिक हेड हमें मिलता है दैट इज सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ स्टाफ, इसे मैं यहाँ पे दिखाऊंगा। और इसके रिलेटेड एक एडजस्टमेंट भी है, देख लो आप यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सैलरी है 300 की। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या होगी, ऐड होगी इसके अंदर क्योंकि वो इसी साल की है और वो एक्सपेंस है और इसलिए मैंने ऐड कर लिया यहाँ पे। सो अब इसका न्यू बैलेंस बन रहा है 30,000 रुपीज़ का, और जैसे कि आउटस्टैंडिंग सैलरी है मतलब ये आगे जाके पे करनी पड़ेगी, तो इसे मैं एज अ लाइबिलिटी में ट्रीट करने वाला हूँ इन बैलेंस शीट बिलो करंट लाइबिलिटीज एंड प्रोविजन। तो आउटस्टैंडिंग सैलरीज यहाँ पे 300 रुपीज़। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है इस्टेब्लिशमेंट चार्जेस फॉर एग्जीक्यूटिव ऑफिस, ये भी एक्सपेंडिचर ही है ऑफ द क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, लेकिन इसके जैसा कोई भी स्पेसिफिक हेड हमें मिलता नहीं फॉर्म एन के अंदर। तो इसे हमें दिखाना है अदर आइटम्स के नीचे एट प्रॉफिट लॉस अकाउंट एट एक्सपेंडिचर साइड बिलो अदर आइटम्स। तो यहाँ पे दिखाने वाला हूँ इसे 5,000 रुपीज़, सॉरी 5,000 रुपीज़ यहाँ पे। और इसके बाद प्रिंटिंग स्टेशनरी। अब इसका तो स्पेसिफिक हेड है अपने पास इन प्रॉफिट लॉस अकाउंट दैट इज E10 प्रिंटिंग स्टेशनरी। और इसके बाद है ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, इसका भी स्पेसिफिक हेड है हमारे पास इन द फॉर्मेट दैट इज ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ऑफ स्टाफ, यहाँ पे मैं इसे दिखाने वाला हूँ 600। इसके बाद है इंश्योरेंस प्रीमियम। अब इंश्योरेंस प्रीमियम को भी हमें अदर आइटम्स के नीचे ही दिखाना पड़ेगा क्योंकि इंश्योरेंस प्रीमियम करके स्पेसिफिक हेड मिलता नहीं है एक्सपेंडिचर साइड पे हमें। उसके बाद है कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, हाँ इसका मिलता है स्पेसिफिक हेड। तो इससे ये देखो यहाँ पे E4 कंट्रीब्यूशन टू स्टाफ प्रोविडेंट फंड, तो यहाँ पे दिखाना है इसे एक्सपेंडिचर साइड पे।
तो नेक्स्ट है इंटरेस्ट पेड ऑन डिपॉजिट्स, मतलब जितने भी डिपॉजिट्स एक्सेप्ट किए हैं इस क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी ने, उसके ऊपर इसने इंटरेस्ट पेड किया है 80,000 रुपीज़ का। तो यहाँ पे इंटरेस्ट पेड E1 इंटरेस्ट पेड 80,000, और इसका एक एडजस्टमेंट भी है, आई थिंक यही एडजस्टमेंट है। वो एडजस्टमेंट क्या है, इंटरेस्ट पेबल ऑन मेंबर डिपॉजिट्स अमाउंटेड टू ₹5,000, मतलब जो भी मेंबर्स डिपॉजिट है उसके ऊपर 5,000 का इंटरेस्ट अभी तक ड्यू है, मतलब इसी साल का है और वो पेड नहीं हुआ है, पेबल है। तो ये यहाँ पे आ जाएगा इंटरेस्ट पेबल 5,000 रुपीज़, और ये ऐड करना पड़ेगा। ऐड करने के बाद इसका न्यू बैलेंस बनेगा 85,000 रुपीज़। अब ये देना है, दिया नहीं है अभी तक, मतलब ये लाइबिलिटी भी है 5,000 की, तो इसे लाइबिलिटी करके भी ट्रीट करना पड़ेगा। यहाँ पे देख लो आप, एट लाइबिलिटी साइड आइटम नंबर L9, दैट इज इंटरेस्ट एक्टिव ड्यू बट नॉट पेड, यहाँ पे भी 5,000 हमें दिखाने पड़ेंगे, दैट इज इंटरेस्ट पेबल ऑन मेंबर्स डिपॉजिट्स। उसके बाद हम शायद ये सारे के सारे हो चुके हैं, खाली एक ही बाकी है डिविडेंड वाला, डिविडेंड पेड वाला इफेक्ट। अब मैं एडजस्टमेंट बाकी के रेट कर लूँगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस सैलरीज का 300 का इफेक्ट मैंने ऑलरेडी दे दिया है। ऑडिट फीस, हाँ आउटस्टैंडिंग ऑडिट फीस है 3,000। तो यहाँ पे देख लो आप, प्रॉफिट लॉस अकाउंट की एक्सपेंडिचर साइड पे जो E11 का आइटम है ऑडिट फीस, इसके नीचे मुझे दिखाना है आउटस्टैंडिंग ऑडिट फीस, तो कितने हैं, 3,000, तो यहाँ पे दिखा दूंगा इसे। इसके बाद इसका नेक्स्ट इफेक्ट होगा बैलेंस शीट में एज ए लाइबिलिटी करके, तो यहाँ पे देख लो आप बिलो L7, दैट इज करंट लाइबिलिटीज एंड प्रोविजन, यहाँ पे 3,000 रुपीज। ओके, आउटस्टैंडिंग ऑडिट फीस। अब इसके भी इफेक्ट्स हो चुके हैं रिकॉर्ड करके। हाँ, अब ये डिविडेंड वाला है, बाकी खाली डिविडेंड वाला ही बाकी। तो मैं इसका सबसे पहले मैं तो यहाँ पे प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्लोज करने वाला, तो इनकम साइड की टोटल कर लेता हूँ मैं। इनकम साइड की टोटल हो रही है 1,91,300। अब असेट साइड की, सॉरी एक्सपेंडिचर साइड की टोटल कर लेता हूँ मैं। एक्सपेंडिचर साइड की टोटल हो रही है 1,27,000, इसका मतलब प्रॉफिट भी इसी साल प्रॉफिट ही है। सो 1,91,300। अब प्रॉफिट की वैल्यू में कैलकुलेट करता हूँ, सो इज इक्वल टू 1,91,300 माइनस टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर। सो प्रॉफिट है 64,300, तो 64,300 का प्रॉफिट है इस साल, 64,300। अब मुझे क्या करना है, आप बैलेंस शीट में सबसे पहले ये जो है ना प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट 60,000, इसमें से 25% मुझे ट्रांसफर करना है टू रिजर्व फंड। अब यहाँ पे आपको आप कंफ्यूज भी हो सकते हो कि मैं 83,000 का क्यों नहीं ट्रांसफर कर रहा हूँ, क्योंकि जो भी रूल है, जो भी प्रोविजन है इन द एक्ट, उसके हिसाब से हमें 25% ट्रांसफर करना है और प्रीवियस ईयर प्रॉफिट, और प्रीवियस ईयर प्रॉफिट कितना है 60,000, ना कि बल्कि लाइफ टाइम प्रॉफिट, और लाइफ टाइम प्रॉफिट कितना है 83,000। तो हमें 60,000 का ही ट्रांसफर करना है 25%, तो उसका कितना बनता है 25%, वो बनता है 15,000। इसका मतलब 60,000 में से 15,000 को निकालो और उसे ट्रांसफर करो रिजर्व फंड के अंदर, तो यहाँ पे जाके वो ऐड होगा। तो रिजर्व फंड में जाके वो बैलेंस ऐड होगा, कितना बैलेंस होगा 15,000 का बैलेंस। तो इसका न्यू बैलेंस कितना होगा 50,000 का बैलेंस, मतलब पहले 35,000 थे और इसके अंदर हमने और 15,000 डाले, वहाँ से निकाले और यहाँ पे डाले, तो ये 50,000 का यहाँ पे बैलेंस होगा रिजर्व फंड के अंदर। अब उसके बाद हमें डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है, कितना डिविडेंड डिक्लेयर किया था 35,000, तो उसी 60,000 में से सबसे पहले 15,000 हमने निकाले, तो वहाँ से और 35,000 को हमें निकालना है फॉर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड, मतलब डिविडेंड के लिए पेमेंट की प्रोविजन करनी है। अब यहाँ पे देख लो आप, लाइबिलिटी नंबर 8 अनपेड डिविडेंड, कितने की प्रोविजन की हमने 35,000 की, और लेकिन एक्चुअल में पेड कितना डिविडेंड हुआ है 31,000 का ही हुआ है। देख लो आप यहाँ पे 31,000 का ही डिविडेंड पेड हुआ है, इसका मतलब अनपेड डिविडेंड कितना है 4,000 रुपीज़ का अनपेड डिविडेंड है, ठीक है। अब इसी प्रॉफिट में हमें करंट ईयर का प्रॉफिट ऐड करना है, कितना है वो 64,300, तो 64,300 को मुझे ऐड करना। अब यहाँ पे मैं निकालूंगा फाइनल प्रॉफिट। सबसे पहले 83,000 में से मैं 50,000 को माइनस करूँगा, क्योंकि वो हमने ट्रांसफ़र किए थे रिजर्व फंड के लिए,
उसके बाद 35,000 माइनस करूँगा क्योंकि ये ट्रांसफ़र किए गए फॉर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड, और जो भी बैलेंस बचा है उसके अंदर में 64,300 को ऐड करने वाला। तो फाइनल प्रॉफिट कितना बच रहा है? 97,300। 97,300। अब मैं जाके बैलेंस शीट क्लोज करने वाला हूँ। अब एक बार चेक करके लेता हूँ मैं, हाँ सारे के सारे मैंने फिगर्स आउटर कॉलम में ले लिए। तो यहाँ पे कितना टोटल आ रहा है? 31,97,600। अब मैं लाइब्रेरी साइड की रिव्यू कर लेता हूँ। सारे के सारे फिगर्स मैंने आउटर में ले लिए, मतलब फाइनल इफेक्ट्स आउटर कॉलम में मैंने ले लिए हैं। अब इसका बिल कितना आ रहा है? हाँ 31,97,600। तो दोनों का टोटल सेम है, परफेक्ट मैच है बिटवीन द टोटल ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज। इसका मतलब हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। और यहाँ पे हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैंने आपको बना के दिखा दी है ऑफ दिस क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। फिर से एक बार आपको देखो, प्रॉफिट लॉस अकाउंट देख लो, इसका हाफ पार्ट और बाकी का हाफ पार्ट ये है। ठीक है, अपने प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट का भी दिखा देता हूँ आपको। ये हाफ पार्ट है, इसको कंप्लीट दिखा सकता हूँ क्या? काफ़ी छोटा दिखाई दे रहा है। ये बैलेंस शीट